Good morning to all the students. Welcome to the physics class. In the last lecture, we were discussing about the comparison of charge and mass. That what are the difference between the charge and the mass. So, as we discussed that the electric charge may have a positive value, negative value, and zero value. But mass of any object or any body can be positive only. It cannot be negative. So it is always positive. Next difference number 2 is that if any object is in motion or it is in rest, the charge will be same. Suppose any object is moving with a velocity v and before some time it was in rest, that is its velocity was 0. So in both the cases the value of charge on that object will be same, whether it is at rest or it is moving with velocity v. But it is not same in the case of mass. In the case of mass, the velocity affects the mass. That is, when the object or a body at rest, the mass will be different, and if the object is moving with some velocity, the mass will be different. So mass will increase with velocity. If the velocity will increase, the mass will increase. It can be understood with the help of this formula. In this formula, we can see here m is equal to m naught upon under root 1 minus v square upon c square. So in this formula, m is the mass of that object, of any object which is moving with velocity v. This mass is the mass of that object when it is in motion, and this mass is the mass of m naught is the mass of object when it was in rest. Okay? So there are both the masses. This mass indicate the motion mass, and this mass indicate the rest mass. Now v is the velocity of that object and c is the velocity of light. We know very well. Now suppose any object at rest and having mass 10 kg. कोई ऑब्जेक्ट है जो रुका हुआ है, उसका मास है 10 kg. After some time it starts moving with velocity, let me suppose it 1/4 of c. Okay, so when you put these values in this equation, what will you get? Suppose we put the values. So m is equal to, what was the value of m naught? M naught was, we supposed it 10 upon में 1 minus v square. v की वैल्यू क्या रखी थी अभी अपने? इट वाज 1/4 c, यही रखी थी, एंड इसका स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर. तो ये जो स्क्वायर है ये अलग अलग हो जाएगा. 1/4 पे अलग स्क्वायर आएगा, c के ऊपर अलग स्क्वायर आएगा. तो c स्क्वायर और c स्क्वायर कट जाएंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा? वी विल हैव ओनली द 1/4 होल स्क्वायर. तो 1/4 होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? वी नो वेरी वेल, इट इज़ 1/16. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस we will get after doing the calculation 15/60, and when we conclude
the here we can conclude that the m value of m will be larger than the 10 kg. अगर आप इसको सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, तो आप देखोगे बेटा, सॉल्व करके देख लेना, तो आप देखोगे कि ये m की वैल्यू इस m नॉट की वैल्यू से ज़्यादा आएगी. तो इट मीन्स कि जब वो मूव करने लग गया है तो उसका मास बढ़ गया, और जब वो रेस्ट पे था तब उसका मास था 10 kg. सो नेक्स्ट पॉइंट, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड. जो कल हमने बात की थी प्रॉपर्टीज़ में, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ में, कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, बट मास की क्वांटाइजेशन अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई है. ये पता नहीं चला कि मास जो है क्वांटाइज्ड है या जो है नहीं है. आफ्टर दैट नेक्स्ट डिफरेंस वी सी हियर दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड. ये भी हमने पढ़ा था चार्ज की जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, दैट द चार्ज इज कंजर्व्ड, that charge cannot be destroyed, cannot be created, but mass is not conserved as it can be changed into energy and vice versa. ठीक है, तो जो मैंने बताया था आपको कि आइंस्टाइन की इक्वेशन अगर अपने देखें इज इक्वल टू mc स्क्वायर, तो इसके हिसाब से वी कैन डिस्ट्रॉय मास इनटू द, सी हियर, mass can be changed into energy and energy can be changed into mass. तो ये हम कहाँ देखते हैं? we see this in the fission reaction. आपने एटॉमिक बॉम्ब देखे होंगे, उसमें फिजन रिएक्शन होती है. फिजन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है वो टूट जाता है, और इलेक्ट्रॉन के टूटने से जो है एनर्जी बनती है, जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे आ रहा है बेटा, द फोर्स बिटवीन चार्जेस, the force between the charges can be attractive और repulsive. ये दोनों तरह का हो सकता है, लेकिन अगर आप देखो मास की वजह से कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो हमेशा जो है अट्रैक्टिव ही होता है. तो इस तरीके से we can say that the force between two charges may be of attractive or repulsive, but ड्यू टू मास जो फोर्स होता है दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. नेक्स्ट वी हैव मेथड ऑफ चार्जिंग. एज वी डिस्कस्ड दैट फ्रिक्शन इज द मेन मेथड ऑफ चार्जिंग बाय विच वी कैन चार्ज अ बॉडी. जैसे हमने बात की थी कि अगर हम ग्लास और सिल्क को जो है आपस में रब करेंगे, देन जो आपकी ग्लास है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो आपका सिल्क है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. तो इस तरीके से अगर अपने प्लास्टिक और वूल को आपस में रब करेंगे तो प्लास्टिक नेगेटिव हो जाएगा और वूल जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो रब करने से क्या है, वी कैन चार्ज अ ऑब्जेक्ट और बॉडी. वो आपको बताया था मैंने, हमने इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन पढ़ी है, उसमें आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मटेरियल को छोड़ के दूसरे में चले जाते हैं, या ऐसे कह लो कि दूसरा उनको छीन के ले जाता है इलेक्ट्रॉन्स को. तो इस तरीके से जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और जिसके पास डेफिशिएंसी हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. So in this way we can charge object by friction. Now next method of charging is by electrostatic induction. ये क्या होता है? See students, let's we try to understand this. सपोज मेरे पास एक, let me find out the empty space. Yes, this is the empty space. Now suppose I have a sphere. Okay,
अनचार्ज स्फीयर। तो अनचार्ज स्फीयर में देखो बेटा दोनों ही होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, और रैंडमली पड़े होंगे उसमें, ठीक है, रैंडमली इसमें ऐसे पड़े होंगे। अब बेटा मैं क्या करता हूँ, आई ब्रिंग अ रॉड ऑफ ग्लास विच इज चार्ज। अब ग्लास के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, ऑब्वियसली इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, सो मैं एक पॉजिटिवली चार्ज जो है ग्लास रॉड लेके आता हूँ। अब उससे होगा क्या, देखो जब मैं इसको इसके बिल्कुल नियर रखूँगा, नज़दीक रखूँगा, तो क्या होगा, ये वाले जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये नेगेटिव को तो अट्रैक्ट करेंगे, इसमें जो इस स्फीयर में जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनको तो अट्रैक्ट करेंगे, बट पॉजिटिव जो चार्जेस हैं उनको रिपेल करेंगे। तो इससे होगा क्या, इससे बच्चे जो आपके नेगेटिव चार्जेस हैं वो एक तरफ आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक तरफ आ जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव को ये अट्रैक्ट कर रहा था वो नज़दीक आ गए और पॉजिटिव को रिपेल कर रहा था तो वो दूर चले गए। सो इन दिस वे वी कैन सी दैट यहाँ पे पोलराइजेशन इसको बोलते हैं बेटा। ये जो प्रोसेस हो गया यहाँ पे, एक तरफ पॉजिटिव आ गए एक तरफ नेगेटिव आ गए, तो ये इसको बोलते क्या हैं, पोलराइजेशन। तो यहाँ पे पोलराइजेशन हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और ये जो इससे चार्जिंग होती है कि कैसे बॉडी चार्ज हो जाती है वो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो वीडियो है वो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। So we will discuss this in the next lecture. Thanks for attending the class.